آج کی مجلس برائے صالح ثواب خواجہ تصور مرحوم اور ان کے خانوادے کے مرحومین کے لیے، کل مرحومین و مومن و مومنات کے لیے، مرحوم علماء اکرام، مراج عظام شہداء ملت جعفریہ اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ میں الحاج شیخ لیاقت علی زرکی اور ان کے خانوادے کو، لالا شیخ مسرت علی اور جتنے بھی مومنین و مومنات تمنا رکھتے ہیں کہ ان کے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھی جائے، اور حاضرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ مالک اهدنا الصراط المستقيم عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل وجل فرجم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا باقین علی عزاء الحسین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر صلی محمد۔ اذن محترم، سید سجاد کا تابوت ہے، تو مصائب کے بعد تابوت برآمدگی ہوگی تو دعا نہیں ہو سکے گی۔ آپ کے ذمے، میرے ذمے، بانیان کے ذمے کئی لوگوں کی دعا ہیں، دعا کے لیے تو چاہے خدا بندہ تجھے واسطہ اس عظیم ہستی کا جس نے ہمیں فرش عذاب بچھانا سکھایا، ہمیں فرش عذاب سے ہمیشہ وابستہ فرما۔ کریم اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جس بیمار کی دعا ہمارے ذمے ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کئی چاہنے والے اہل بیت کے عزادار اس وقت اسپتالوں میں، گھروں میں مریض ہیں، تجھے واسطہ سید سجاد کا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار حلال عطا فرما۔ باب العلم فاؤنڈیشن کے برادران کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے وہ اراکین جو دنیا سے جا چکے ان کے درجات کو بلند فرما۔ ان مجالس میں جس نے جو حصہ لیا اس حصے کو قبول فرما۔ کریم اللہ جامعۃ المنتظر کے بنیاد سے لے کر آج تک جتنے علماء طلباء یہاں علم حاصل کرنے کے بعد راہ الہی ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے مل کر بلند آواز صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ صلی اللہ محمد۔ عزیز محترم، 21 تا 25 محرم سن 1447 ہجری 2025 عیسوی آپ کے سامنے جس مضمون کی انتخاب کیا تھا، اصحاب امام زین العابدین علیہ السلام، ہم نے آپ کے سامنے پہلے دن عرض کیا تھا کہ اس موضوع کو سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کی ادائیگی کا طریقہ یقیناً ہم نے دروازے اہل بیت سے لیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جنہوں نے نقل کیا ہے وہ یا اصحاب رسول ہیں یا اصحاب علی ہیں، لیکن عزاداری سید الشہداء اور کربلا کے بعد کربلا کیسے تحریر کی گئی،
मजालिस का कैसे इनेकाद हुआ, इस सिलसिले को जिन्होंने आगे बढ़ाया वो असहाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन। एक बहुत बड़ी बात जिसकी तरफ आज इशारा होगा इंशाल्लाह। 3 दिन तक हमने आपके सामने उन असहाब का जिक्र किया जो मर्द हजरात थे। बड़ी अजीम अजीम हस्तियों का जिक्र आया, सईद इब्न जुबैर, अबू हमज़ा समाली, मुसैब इब्न जुबैर, ज़ुरारा इब्न आयुन, मोहम्मद इब्न मुस्लिम, इतनी अजीम शख्सियतों का जिक्र आया। और मेरी एक तमन्ना है, मैं आपसे साहिबान इल्म से, साहिबान ज़ौक़ से ये गुजारिश करूंगा कि खुदा गवाह है, कभी कभी कोई ऐसी शख्सियत होती है, उस एक शख्सियत के इर्द गिर्द मजहब अहल बैत का कई हिस्सा घूम रहा होता है। एक शख्सियत, मसलन मैंने आपके सामने नाम लिया था ज़ुरारा इब्न आयुन, यानी एक ऐसी शख्सियत है जिसने इमाम के मकतब का उस वक़्त दिफा किया जब सारे तीर चल रहे थे, और इमाम ने उसकी हिमायत की। और इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी सिर्फ हिमायत से मतलब नहीं, बल्कि इमाम ने कहा कि ज़ुरारा ने जो किया है हम उससे राज़ी हैं। उसके बाद कल हमने आपके सामने खवातीन के हवाले से चंद जुमले अर्ज किए थे कि वो खवातीन जिनका किरदार था। अज़न मोहतरम, एक नाम आता है तारीख में जिसे लेते हुए, समझते हुए, बयान करते हुए लोगों को कभी इल्मी मसला पेश आता है, कभी लोगों के ऊपर ऐसा प्रेशर होता है जिससे लोग समझ नहीं पाते। उस नाम लेने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि कल हमने आपके सामने जिन खवातीन का जिक्र किया उनमें एक नाम फातिमा बिन्ते इमाम हसन था, यानी सैयद सज्जाद की इस पूरे वाक़े में जो अजीम तर मददगार थे। यानी यहां तक इस जुमले को मैं अर्ज कर रहा हूं और आपके हवाले कर रहा हूं, इस जुमले को जाके गौर कीजिएगा कि जैसे सानिए ज़हरा शाम में सैयद सज्जाद की मददगार थी, ऐसे उनकी शहादत के बाद मदीने में जिसने तमाम औरतों को संभाला हुआ था वो हसन की बेटी, हुसैन की बहू और सज्जाद की जोजा फातिमा बिन्ते हसन थी। एक ऐसा वाकया, एक ऐसा शख्स जिसका भी नाम आपके सामने अर्ज करूंगा, यानी अहल बैत की तमन्ना थी। गौर कीजिएगा, इस जुमले पे गौर कीजिएगा। यानी अहल बैत ने उस चीज की कितनी कीमत चुकाई थी और उस कीमत की अदायगी के बावजूद वो मसला हल नहीं हुआ था। लेकिन उस मसले को जिस जात ने हल करवाया वो सैयद सज्जाद, और उसमें सबसे बड़ा किरदार जिस जात का है वो फातिमा बिन्ते हसन। गौर कीजिएगा, आपसे कहा जाए एक शख्स है जो आपके बाप को बुरा भला कहता है, एक शख्स है जो आपके बाप की तौहीन करवाता है, और आपसे कहा जाए, गौर कीजिएगा, आप फला मिल्कियत दे दे। तवज्जो चाहता हूं आखिरी बंदे तक एक ऐसे मसले का जवाब आपके हवाले कर रहा हूं कि आपके इस मिल्कियत आप इसको दे दें, इतने पैसे दे दें कि जो आपके बाप को बुरा भला कहा जा रहा है ये खत्म हो जाएगा। यकीन करें, अगर कोई पाकीज़ा औलाद होगी वो कहेगा मिल्कियत तो आ जाएगी, बाप की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान है, जाए सुलह इमाम हसन पढ़े। उसमें पहली शर्त ये थी कि मैं खिलाफत तो दे रहा हूं लेकिन अली पर सबो शितम नहीं होगा। याद रखिएगा, जो कहते हैं हसन ने खिलाफत क्यों छोड़ी थी, हसन ने खिलाफत को सदका किया था इज्जत अली के ऊपर। इज्जत अली का मसला था। गैरतमंद बेटा खिलाफत के बगैर तो जी सकता है लेकिन बाप की शान में गुस्ताखी नहीं सकता। कहा कि जो लेना है ले लो, इज्जत अली से बढ़कर कुछ भी नहीं। पहली शर्त जाके पढ़े सुलह इमाम हसन कि अली की इज्जत होगी। उसके बावजूद क्या हुआ, दुश्मन ने दोबारा शुरू कर दी। अब इसको जिसने बंद करवाने का अहद लिया वो जात सैयद सज्जाद थी। उम्मे आसिम फातिमा बिन्ते हसन के पास पढ़ती थी। फातिमा बिन्ते हसन ने, गौर कीजिएगा, माए जब बच्चे पालती हैं तो उनके ऊपर माओ का असर नजर आता है। बाप कोई भी हो, इसकी अजीम तर मिसाल आपके सामने अर्ज कर चुका। एक माँ थी जिसने मोहम्मद इब्न अबी बकर को पाला था,
एक माँ थी जिसने हजरत हुर को पाला था, एक माँ थी, माँ ही तो थी जो किरदारों को तब्दील कर देती है। तभी मेरे सामने जवान बैठे अर्ज कर रहा मोहतरम, जब भी अपने लिए शरीक हयात का इंतखाब करें, सिर्फ जोजा तलाश न करें बल्कि बच्चों की माँ तलाश, यानी ये सोच के करें जिसके साथ मैं शादी कर रहा हूं कल मेरी नस्ल याद जारी होनी है। तदन मोहतरम उम्मे आसिम नामी खातून को जनाबे फातिमा बिनते हसन ने पढ़ाया। उस उम्मे आसिम को खुदा ने बेटा दिया जिसका नाम था उमर इब्ने अब्दुल अजीज। उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब कभी मस्जिद में आता था, गौर कीजिएगा, जब कभी मस्जिद में आता था इमाम को कभी सजदे में देखता था, कभी इमाम को इबादत करते देखता था, कभी इमाम को फकीरों को रिज़्क बांटते हुए देखता था। एक दिन उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा, मैंने तवज्जो चाहता हूं, मैंने इस मदीने में जहां सहाबी भी हयात है, जहां ताबी भी हयात है, या तिब्बे ताबीन भी हयात है, आप जैसा इबादत गुजार नहीं देखा, इबादत गुजार नहीं देखा। मस्जिद नबवी के पास खड़े हैं कौन? उमर इब्ने अब्दुल अजीज और अली इब्ने हुसैन। जब इमाम की इबादत की तारीफ की, इंसान होता क्या कहता? कहता शुक्रिया तुम्हारा, मैं तो वाकई इबादत गुजार हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो ये भी करता हूं। जब अब्दुल अजीज ने इमाम की इबादत की तारीफ की, इमाम ने फरमाया तूने मेरी इबादत देखी है? कहा कि हाँ। कहा एक आबिद ऐसा है जिसके सामने सज्जाद की इबादत भी बहुत कमतर नजर आती है। कहा वो कौन सा आबिद है? कहा बाकिर जाओ वो दफ्तर लेकर आओ जिसमें मेरे बाबा अली की इबादत जब इमाम ने वो दफ्तर मंगवाया और एक दफ्तर मंगवाने के बाद उमर इब्ने अब्दुल अजीज से कहा देखो मैं जिससे मुतासिर हूं, जिसके सजदों से सज्जाद दर्स लेता है उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। गौर कीजिएगा, फरमाया ये दरवाजा देख रहे हो? कहा कि हाँ। कुरान में कहा इसका तज़किरा है? कहा कैसे? कहा फरमाया अल्लाह ने रसूल को हुक्म दिया था कि सबके दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ दो ही दर खुलेंगे। का किसके? का एक दर नबी का, एक दर अली का। फरमाया सुनो नमाजें तो सब पढ़ते हैं, किसी की नमाज कुरान में नहीं है, लेकिन एक नमाजी ऐसा है जिसकी नमाज की गवाही कुरान में। का कौन? का सूरह मायदा आयत नंबर 55, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। का के जाओ अपने किसी बड़े से पूछना, दी तो बहुत सावरण थी, जिसके देने पर आयत उतरी थी उसे अली इब्ने अबी तालिब, उमर इब्ने अब्दुल अजीज याद, उमर इब्ने अब्दुल अजीज याद। फरमाते उमर इब्ने अब्दुल अजीज इमाम को देख रहा है। कब बताऊं इस मस्जिद से अली की कुछ और यादें भी हैं? कब बताएं बताएं बताएं? कब सुने इसी मस्जिद से अली तशरीफ ला रहे थे। हजरत अबू बकर ने रसूल से पूछा था या रसूल अल्लाह, सूरह यासीन में इरशाद हुआ है कुल्ल शैइन आसैनाहु फी इमामिन मुबीन, हर चीज को इमाम मुबीन के सीने में रखा गया है। या रसूल अल्लाह मन हुआ इमामुल मुबीन, या रसूल अल्लाह ये इमाम मुबीन क्या है? तो नबी ने कहा था फंतज़िर, इंतजार करो। हजरत अबू बकर इंतजार करते रहे, इतने में ये दरवाजा खुला, यहाँ से अली आए। हजरत अली के देखकर रसूल ने फरमाया ए अबू बकर उन्जुर इला हाज़ा हाज़ा इमामुल मुबीन। याद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं आप जब जिक्र कर रहे हैं, आपके जिक्र के अंदर मुझे बहुत मोहब्बत आ रही है, आपके जिक्र के अंदर मुझे बहुत लज्जत महसूस हो रही है। और बताए फरमाइए जो मस्जिद नबवी है ना, इस मस्जिद नबवी में रसूल खुदा ने एक दिन एक काम किया था। का क्या किया था? का जिसे भाई बनाने की बात की जाती है, जिसे उखुवत का कहा जाता है। का फिर क्या किया था? का जिसका मिजाज जिससे मिलता था उसको उसका भाई बनाया था। खुदा की कसम सारे तमन्ना करते रहे, किसी को भी अली का भाई नहीं बनाया था। फरमाया फिर क्या अली अकेले रह गए थे? फरमाया नहीं, उमर बिन अब्दुल अजीज अली को थाम कर सीने से लगा के कहा था या अली अंता की फिद दुनिया वल आखिरह।
عمر بن عبد العزیز کے سامنے امام نے خطاب کیا. عمر بن عبد العزیز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ماں پہلے بتا چکی تھی. عمر بن عبد العزیز کہتا ہے ایوہ شخص شریف اندی سوال اے پاکیزہ بندے, توجہ چاہتا ہوں, اے پاکیزہ بندے میرا تم سے ایک سوال ہے. کہا پوچھے. کہ جو اتنا عظیم ہے پھر لوگ اس پہ تبرہ کیوں کرتے, معاف کیجئے گا جملہ, اس پہ سب و شتم کیوں کرتے, اس سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اب کی توجہ میری طرف رہے. اتنا عظیم ہے, اس کی نماز کی گواہی قرآن میں, اس کی ولایت کے لیے قرآن میں آیت, اس کے لیے قرآن کے اندر یہ آیت دربار سب نے دیکھا تھا. حضرت کہتے ہیں بڑا مسئلہ ہے. کیا کہ جس سچے نبی نے علی کے فضائل بیان کیے تھے اسی نے کہا تھا یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جس کا شجرہ پاک ہوگا. یا علی یا علی یا علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا. اتنے میں ایک بزرگ, توجہ چاہتا ہوں, ایک بزرگ مسجد نبوی کے اندر تڑپ رہا تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. امام نے فرمایا ادھر آؤ. جابر ابن عبداللہ الانصاری ادھر آؤ. جناب جابر آئے. جیسے جناب جابر آئے فرمایا اے جابر, جابر اخبر ھذا الرجل, اے جابر اسے بتاؤ تم علی کے بارے میں کیا کرتے تھے. جابر کہتا ہے خدا کی قسم جب سے اپنے نبی کی یہ حدیث سنی تھی کہ علی سے وہی پیار کرے گا جو پاکیزہ ہوگا, جس کا شجرہ پاک ہوگا, واللہ نحن نمتحن اولادنا بذکر علی, ہم اپنی اولادوں کا امتحان لیتے تھے محبت علی کے ذریعے. جب عمر جب عمر بن عبد العزیز نے یہ سنا کہتا ہے مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب بھی موقع ملے گا کچھ کروں نہ کروں زمانے کو بتاؤں گا علی سے محبت نہیں کر سکتے, عزت تو کرو. میں عمر بن عبد العزیز کی شخصیت پر, اس کے عقیدے پر, اس کی خلافت قبول کسی چیز کی وکالت نہیں کر رہا, لیکن اس کے اچھے امر کی اہل بیت نے بھی تعریف کی کہ جب اسے خلافت ملی امام کی شہادت کے 3 یا 4 برس بعد, ٹوٹل اس کی خلافت چند برس رہے, 39 سال کی عمر میں عمر بن عبد العزیز دنیا سے چلا گیا. اس کا فیصلہ خدا کے حوالے, میں اس کے شجرے کی کسی اس کی تعریف یا توثیق نہیں کر رہا, لیکن وہ کام جس کے لیے امام حسن نے خلافت صدقہ کی تھی, وہ کام جس ذات نے کیا وہ سید سجاد. حضرت محترم مائیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی کسی عورت کو کمزور نہ سمجھا کر, کبھی ایک عورت تمام مردوں پہ بھاری ہو جاتی. مثال سمجھ میں نہ آئے تو شام میں دیکھیں, لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھی, لوگوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے, لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایک چیز تھی. علی کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے, لیکن جب زبان سے بولی لوگ کہتے تھے جیسے بدر میں علی نے کفار کی گردنوں کو کاٹا تھا ایسے زینب کی لسان نے لوگوں کے شجروں کو کاٹا. عورت ایک اور عورت, عظیم عورت, ام ایمن, جس کا ذکر نہیں ہوتا. کون ام ایمن؟ پنجتن پاک کو پالنے والی ام ایمن. پنجتن پاک کو جناب فضا کا کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, پنجتن کے ساتھ وقت گزارا, لیکن جب تشریف لائی تھی تو حسن حسین کا بچپنا دیکھا. ام ایمن کنیز جناب عبداللہ ہے, اور ام ایمن نے پنجتن پاک نبی سے لے کر سید الشہداء تک سب کا بچپنا دیکھا, ایک ایک کو گود میں کھلایا. اور ام ایمن گواہ بنی سیدہ کی, اور ام ایمن کے لیے نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا ام ایمن کے لیے. توجہ چاہتا ہوں, یہ بات آ گئی ماؤں کی تو ام ایمن کا تذکرہ آ گیا کہ اگر کسی نے زمین پر میری امت میں سے, اہل بیت کی بات نہیں, امت میں سے جنت کی عورت دیکھنی ہے تو وہ ام ایمن کو دے. کیوں ذکر نہیں ہوتا؟ جناب حلیمہ کا ذکر ہوتا ہے, صحیح ہے, جناب حلیمہ کا ذکر ہونا چاہیے, منع نہیں کر رہا. ہمارے بھائی جناب حلیمہ کا ذکر کرتے ہیں,
हमारे भाई कोई 2 दिन तक नबी के साथ रहा उसका जिक्र करते हैं। जो अब्दुल्ला की खनीज थी, नबी की जाहिरी विलादत से लेकर शहादत तक साथ रही। तवज्जो चाहता हूं, जिक्र क्यों नहीं होता? क्या जिक्र इसलिए नहीं होता क्यों मेमन बाद वफात नबी सबको छोड़कर बतूल के साथ थी, सबको छोड़कर बतूल के साथ। अरे मोहतरम, इमाम ने ये काम किया, उमर इब्न अब्दुल अजीज वाला। अब सवाल है और बात इख्तिताम को जाएगी। आज आखिरी मजलिस से आपने मुझ जैसे तालिब इल्म को समाअत किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मदीने में और भी बड़े बड़े लोग थे। अब्दुल्लाह इब्न जाफर थे, हजरत जाफर तैयार के फर्जंद। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद। मुख्तार सकफी रिहा हुए। इन तमाम लोगों पे तवज्जो चाहता हूं, बादशाह वक्त हैरान था। कहता है क्या है? का जिसे मैंने बीमार समझा था, वो जब मदीने में होता है उसका हुक्म कूफे में चल रहा होता है। जब वो मदीने में होता है, तवज्जो चाहता हूं, उसका हुक्म मक्के में चल रहा होता है। हम जब देखते हैं कि उसके घर में कोई आता नहीं, वो कहीं जाता नहीं, लेकिन लगता ऐसे है ये सिलसिला आपस में जुड़ा हुआ है। कैसे? जब हजरत इमाम से पूछा, आपके चाहने वाले कहते हैं, आपने कहा है आपका कोई कासिद नहीं जाता। तवज्जो चाहता हूं, आपका कोई कासिद नहीं जाता, आप कहीं नहीं जाते, लोग आपके पास नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लोग आपकी इताअत में नजर आते हैं। इमाम कहते हैं सुनो और समझो, तुम्हारी हुकूमत है, मेरी भी हुकूमत है, लेकिन फर्क है तुम लोगों के बदनों पर हुकूमत करते हो, हम लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हो, कल्ब पर हुकूमत है। इमाम एक एक शख्स के कल्ब पर इमाम की हुकूमत। यानी बड़े बड़े लोग आते थे। एक दिन 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि बाबा के जो मोजज़े थे, करामात थी, एजाज थे, देखकर लोग हैरान हो जाते। यानी मैंने आपके सामने अर्ज किया था हबाबतुल वलादिया का कत्ल, यानी चलती फिरती इमाम का मोजज़ा, चलता फिरता इमाम की मुबल्लिग कि मेरे साथ हुआ है। आप देखिए, एक शख्स के साथ एक वाक़या हो, एक बुढ़ापे से जवानी की तरफ आ जाए, आप उसे कुछ भी कहें, वो ये कहेगा कि सुनो जो इसने किया है क्या तुम कर सकते हो? करके दिखाओ, तुम्हें फिर मानूंगा। इतने में शख्स था इमाम के चाहने वाला, बल्ख का रहने वाला था। बल्ख एक शहर है। इमाम के पास आता था, गौर कीजिएगा, बहुत दूर से आता था, अजीम साहबी। और इमाम के पास जब आता था मुख्तलिफ चीजें लेकर आता था। और बाखुदा जब मैंने जुमला पढ़ा मुझे हैरत हुई। फरमाया वो लेकर आता था, इमाम उसके सामने तकसीम करते थे, बड़ी बड़ी चीजें लाता था। जब वो लाता था उसकी अहलिया उसको कहती थी क्या लेके जा रहे हो, किसके लिए लेके जा रहे हो? वो रोता था, उसका एतकाद इतना मजबूत था, वो अहलिया के सामने मजबूर था लेकिन गिरिया करता था। कहता था कि तुम जो कह रही हो मेरा इमाम सुन रहा है, तुम्हारे कलाम से इमाम वाकिफ है, गौर कीजिएगा। एक दिन कहा कि चलो देखती हूं आज तुम्हें इमाम क्या देते हैं। ये बल्ख से बहुत सारी चीजें लाया, इसने खाना खाया। इमाम अलैहिस्सलाम कहते आ जाओ करीब आओ। इमाम ने पानी के बर्तन को लिया, कहता है करीब आए। वो कहते हैं मौला क्या कर रहे हैं, मैं पानी आपके हाथों में डालूं? इमाम कहते हैं नहीं, आज पानी मेरे हाथ में होगा और तुम्हारे हाथों से कुछ जारी होगा। इमाम ने उस पानी को इसके हाथों पे डाला, अपने हाथों में नहीं डाला, मोमिन के हाथों पे डाला, ताकि जमाने को बताएं हमारे चाहने वालों के हाथ आम हाथ नहीं है, इन्हें कीमती समझो। ये जो अज़ादारी पे हाथ उठते हैं ये साहिब एजाज है। खुदा की कसम एक मोजज़ा तो इमाम की बदौलत खुदा ने आपके हाथ में भी रखा है। आप पूछेंगे कैसे? हाथ आप उठाते हैं, सीने पे आपके पड़ता है, तकलीफ किसी यजीदी को होती। ये मोइज़ा नहीं तो क्या? हालांकि होना तो ये चाहिए, आपका दुश्मन राजी हो और कहे कि और मानो, लेकिन ये अहले बैत का मोइज़ा है, सीने पे हाथ आपके पड़ता है,
तड़पता कोई किस जगह पर है, कोई किस जगह पर है। और खुदा की कसम माफ कीजिएगा, बात आएगी तो सुन लीजिए। कहते हैं अज़ादारी में क्या रखा है, मजलिस में क्या रखा है, ताबूत में क्या रखा है, जुलजना में क्या रखा है। उनसे पूछो अगर कुछ रखा नहीं तो तुम्हें मसला क्यों है। यजीद के एजेंटों का इस चीज पर तड़पना बताता है कि फर्श अज़ा में वो ताकत है जो ताकत न लोगों के डॉलर में है, न दिरहम में है, न दीनार में। ये पूरा साल मेहनत करके साजिशों को करते हैं, हुसैन के अज़ादार सीने पे हाथ मारकर उनकी साजिशों को मिटा दे। वाकई ये इजाज़त है, मैं आपकी खुशामद नहीं कह रहा। इमाम ने उसके हाथों पे पानी डाला, इमाम का पानी डालना था, उसके हाथों से हीरे जवाहर याकूत मर्जान जारी हुए। रोने लगा, कहते मौला ये क्या कर रहे हैं। इमाम ने कहा रह जाओ। कहा मौला जरूरत नहीं है। इमाम कहते तुम्हें जरूरत नहीं है, जिसने कहा था उसको बताना, हम देना भी जानते हैं, लेकिन जो कुछ तुम्हें दिया है वो इससे कीमती है। वो लेके गया रोता हुआ, इमाम से माफी मांगी। इमाम ने कहा ले जाओ। जब वो पहुंचा, वो एलिया से कहता है ये इमाम ने दिए हैं, पूरा वाक़या सुनाया। वो कहती है शायद मेरा शोहर है, इमाम को बचाने के लिए खरीद के लाया हो। वो कहती है मुझे लेके चलो, इम्तिहान के लिए आ रही थी, मुझे लेके चलो। जैसे ही कहा मुझे लेके चलो, रास्ते में इसका इंतकाल हो गया। इसका इंतकाल हुआ, ये सामान के पास एहलिया को किसी इमानतदार बंदे को छोड़कर इमाम की खिदमत में आया। कहते मौला ये हो गया, मौला ये हो गया, चलें मेरी एहलिया का जनाजा पढ़ें, मेरी एहलिया के लिए दुआ करें। खुदा की कसम इमाम की इनायत देखे। इमाम फरमाते जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अज़ान मोहतरम ये पहुंचा, जैसे ही पहुंचा एहलिया को देखा, एहलिया से पूछता है क्या हुआ। कहती है मुझे लेके चल। जिसके पास जा रही थी, जैसे इमाम की खिदमत में आई, इसने क्या देखा, ये ज़ारो कतार रोने लगी, इमाम से माफिया मांगने लगी। शोहर ने कहा क्या हुआ, तू तो इनका इम्तिहान लेने आई थी, तुम्हारी तकदीर कैसे तब्दील हुई, तुम्हारा मिजाज कैसे बदला। वो कहते खुदा की कसम मुझे क्या पता कि जिस शख्स का मैं इम्तिहान ले रही थी वो तो वो है जिसका हुक्म फरिश्तों पे भी चलता है, ये तो वो है जिसका अर्श पर भी हुक्म चलता है। घबराइएगा नहीं, इमाम का लक़ब है सैयदुस साजिदीन। जाके कुरान में देखिएगा, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा है जब आदम के सामने सजदा किया, फरिश्ते साजिदीन है, इमाम सैयदुस साजिदीन है। और जाके देखिएगा अंबिया की सिफतों में बार बार खुदा ने जो अंबिया को कहा है, अंबिया को इमाम अल्लाह ने कुरान में आबिदीन कहा है, आबिदीन। जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक सब आबिदीन है, और मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तदर मोहतरम अर्श 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 खुदा को सजदा करता है, ये जमीन खुदा को सजदा करती है। सूरह जुमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हर चीज तस्बीह करती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता तो क्या हुआ। हर चीज तस्बीह करती है, हर चीज तस्बीह करती है। और तस्बीह को इबादत कहा जाता है। जितने भी लोग इबादत करते हैं उनकी जीनत को सैयद सज्जाद कहते हैं। वो खातून अपने शोहर से कहती है खुदा की कसम मेरी रूह को कब्ज किया गया। जब मेरी रूह को कब्ज करके मेरी रूह की परवाज हुई, जो जमीन पर बैठा है, जो खाक पर बैठा है, जिसने कोई फाखराना लिबास नहीं पहना हुआ, मैंने इसे देखा। अर्श पर जब आया, इसने फरिश्ते से कहा इसे छोड़ दो, ये मेरे पास इम्तिहान के लिए आई है, ये मेरी मेहमान बनकर आई है। ताकि जब इमाम के ये जुमले हुए, फरिश्तों ने मुझे छोड़ दिया और आज मैं इमाम की खिदमत में खड़ी हूँ। अज़ान मोहतरम इमाम का गुलाम, इमाम का सहाबी रोने लगा। कहता है मौला अगर नाराज है तो माफी मांगता हूँ। इमाम कहते नहीं, एक बलग से आने वाले मोमिन, हम तुमसे भी राजी हैं, तुम्हारी एहलिया से भी राजी है। सुनो, हमारे मौजज़े देखकर भी जो दरवाजे पे झुके उसे अहल बैत की नजर में
पाकीज़ा कहा जाता है। का क्यों? का सुनो, हुर था, वो इब्तिदा में नहीं आया लेकिन इंतहा में आया, उसे हुसैन ने अलैहिस्सलाम बना दी। आए तो सही, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हर कल्ब का अपना इम्तिहान है। कोई ऐसा कल्ब होता है जो जल्दी आ जाता है, कोई ऐसा कल्ब होता है जो इम्तिहान से गुजर के आता है। लेकिन जो आ गया अहल बैत के दरवाजे, अज़न मोहतरम, मैंने बात को खत्म किया, आपके सामने सहाबा का जिक्र किया, इमाम के एजाज का जिक्र किया, इमाम की खिदमत का जिक्र किया। लेकिन याद रखिएगा, इमाम की दो चीजें आपके पास अमानत है। एक अज़ादारी सैयद शुहदा, एक ज़ियारत सैयद शुहदा। और दो चीजें इमाम का तोहफा है आपके पास। अमानत है अज़ादारी, अमानत है ज़ियारत हुसैन। न कभी अज़ादारी पे समझौता करना, न कभी ज़ियारत पे समझौता करना। और दो चीजें इमाम की तरफ से आपके लिए तोहफा है। वो क्या? एक सहीफे सज्जादिया, एक रिसालत हुकूक। जब कभी तुम्हारा दिल घबराए, किसी से मशवरा मांगने को जी न करे, इमाम की दुआओं की किताब उठाना, ऐसा लगेगा कि तुम्हारी परेशानी को भी जानते हैं, उसके हल को भी जानते हैं। जब तुम्हें समझ में ना आए किसी के साथ कैसे पेश आऊं, इमाम की किताब रिसालत हुकूक उठाना। और दो चीजें जो इमाम की सीरत है, एक इबादत सैयद सज्जाद, दूसरी इमाम का जालिम के खिलाफ कयाम। इन 6 चीजों को अपने जहन में बिठा। जालिम के खिलाफ, यानी आप सोचे, आप कहते हैं मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, गजा के मजलूमों ने क्यों हमला किया, ईरान ने हमला क्यों किया, वसाइल नहीं थे। ये सैयद सज्जाद की सुन्नत है। जालिम जब जुल्म हद से बढ़ जाए, उसका जवाब दो, नतीजा जाने खुदा जाने। ताकि तुम कल खुदा के हुजूर ये कह सको, मैं उसके सामने सर तस्लीम नहीं हुआ। आप सोचें कितने वसाइल कम होंगे आपके पास, आपके वसाइल की कितनी कमी होगी। क्या इतनी कमी होगी जितनी सैयद सज्जाद के पास थी? जाहिरी तौर पर मैंने आपको सामने पहले दिन अर्ज किया था, इस 35 बरस में मैं किसी तंजीम का, किसी अंजुमन का, किसी आलिम का नाम नहीं ले रहा। अगर कोई शख्स इस मुआशरे में 35 बरस काम करे, कितने अफराद होंगे? हजारों नहीं तो 1000 अफराद तो ले लेगा। इमाम ने इतनी जहमतों के बावजूद 266 सहाबी, जो इमाम के मुखलिस सहाबी कहलाए, लेकिन क्या था? एक एक इमाम का सहाबी ऐसा था, पूरा शहर एक तरफ, अली का एक आशिक एक। ईमान की कुव्वत, इरादे की कुव्वत, ज़हनी तरबियत। एक दफा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ। बहुत शुक्रिया। अज़न मोहतरम, जब कभी परेशान हुआ करे, आपके सामने इमाम का एक नुस्खा अर्ज कर देता हूं, जो जलील कदर आलिम से सुना, नाम भी ले लेता हूं, आलिम आका तकी बहजत से कहते, जब तुम्हारे पास तमाम रास्ते बंद हो जाए तो खुदा का एक इसम या फत्ताहु, उसे कसरत से पढ़ो, उसे पढ़कर सैयद सज्जाद को हदिया करो, और सैयद सज्जाद को वास्ता दो उनके बाबा की प्यास का। जब तुम उनसे तवस्सुल करोगे इस अंदाज से, तो तुम्हारा तवस्सुल कबूल हो जाएगा। हाँ ज़दारो, आज इमाम का ताबूत उठेगा। आपने 4 दिन बेहतरीन पुरसा दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरी उम्मीद से ज्यादा आपने गिरिया किया, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं, आज ऐसे रोइएगा कि गरीब भी दुआ दे, उसकी औलाद भी दुआ दे। इस फर्श अज़ा पर यकीनन इमाम का पुरसा लेने के लिए कोई आए ना आए, वक्त के इमाम जरूर तशरीफ लाएंगे। जो पुरसा लेने आएंगे, मालूम है क्यों?
क्योंकि आज उसका पुरसा है जो 35 बरस तक तरसता रहा, कोई मुझे मेरे बाबा का पुरसा दे। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अल्लाह अकबर। अज़ादारो सैयद सज्जाद के लिए सबसे मुश्किल वक्त पहली मर्तबा तब आया जब बाबा के जनाजे के पास से गुजरे। बीबी ज़ैनब ने कहा, सज्जाद तेरे चेहरे पर मौत की जर्दी। फरमाया, अम्मा वो बेटा मर न जाए जिसके बाप का जनाजा जमीन पर हो। फरमाती है, सज्जाद अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें शाम कौन लेके जाएगा? अज़ादारो उलमाए मख्तल कहते हैं, गरीब के कटे हुए गले से आवाज आई, सज्जाद मेरे इम्तिहान पर हैरान न हो। का क्यों बाबा? फरमाया, सज्जाद तेरा इम्तिहान सख्त है। का बाबा इससे ज्यादा सख्त क्या होगा? फरमाया, मेरे बदन पर घोड़े दौड़े हैं, तेरे दिल पर खंजर चलेंगे, तेरे दिल पर खंजर चलेंगे, तेरा गैरत का इम्तिहान है। अज़ादारो वक्त वसी है, मसाइब जी भर के सुनिएगा। ताबूत वक्त पे आएगा, पहले ताबूत नहीं आएगा। अज़ादारो इमाम के शाम का मसाइब आपने सुना, आपने इमाम के कूफे का मसाइब सुना। एक दिन आपने इमाम की वो गुर्बत सुनी जब इमाम करबला से गए थे। आज मेरा दिल है कि शहादत से पहले रिहाई का सुने, रिहाई करके करबला कैसे आए, करबला से मदीना, मदीना की एक रिवायत और आपसे इजाजत का तालिब हूं। अज़ादारो जब कहा जाता है ना रिहाई हुई, खुदा की कसम आप बिस्तर पे भी गिरिया करेंगे अगर ये रिवायत पहुंची। कितना भी कैदी गरीब हो, कितना भी असीर मिस्कीन हो, ऐसा कैदी हो जिसका कोई वारिस न हो। कराची के अंदर कई ऐसे कैदी होते हैं जिन्हें मालूम भी नहीं होता हम निकलने के बाद जाएंगे कहाँ। न कोई घर है, न कोई घर वाला है, फिर भी उनके चेहरों पे तबस्सुम आता है। का क्यों? कर रिहा तो हो गए, खुली फिजा में तो जाएंगे। लेकिन अज़ादारो जब गरीब से कहा तुम रिहा हो, गरीब रोने लगा। फरमाया, रो क्यों रहे हो? फरमाया, रिहा तो तब हुआ न जब वो चली गई जो रोज पूछती थी, सज्जाद रिहा कब? आवाजों को आजाद छोड़े, सीने पे मातम करे। कब वो चली गई जो रोज पूछती थी, भैया ये जंजीर कब उतरेंगे? अज़ादारो अखबार मातम किताब का नाम का लोहार को बुलाया गया, लोहार को, कि गरीब की बेड़ियों को काटे, गरीब की हथकड़ियों को काटे, गरीब के तोप को काटे। अज़ादारो इस जुमले को याद रखिएगा आखिरी जुमले तक, कि जैसे ही लोहार आया ना, लोहार तो लोहार था, उसने गरीब की हथकड़ियों को काटा, गरीब के हाथ रिहा हुए, सकीना की तुरबत की तरफ इशारा किया, तड़प के कहते थे, सकीना सज्जाद रिहा। उसके बाद गरीब की बेड़ियां कटी, गरीब की बेड़ियां कटी, बेड़ियां के बाद गरीब के तोप की बारी थी। साहिब अखबार मातम लिखते हैं, जब तोप की बारी आई ना, लोहार कभी गरीब की तरफ हाथ बढ़ाता था, कभी रोक लेता था, कभी बढ़ाता था, कभी रोक लेता था। गरीब ने कहा, लोहार तुम्हें तो काटने के लिए बुलाया गया है, क्यों नहीं काटते? कहता है, कैदी तुम आंखें बंद करो, मैं फिर काटूंगा। का क्यों? का के कैदी तुम्हारे तोप की जो सलाखें हैं ना, वो तुम्हारी गर्दन में पेरिस्ताज। कैदी मुझे डर लगता है अगर मैंने तोप काटा तुम्हारी गर्दन रिहा हुए इमाम, रिहा हुए इमाम। इमाम को सर मिले, करबला पहुंचे, जनाब जाबिर से मुलाकात हुई, जनाब जाबिर को एक एक दर्द बताया। करबला से होते हुए जब काफिला चलने लगा ना, बीबी कहती है, सज्जाद मैंने हुसैन की कब्र पे मातम किया, सज्जाद तुमने मुझे अब्बास की कब्र नहीं दिखाई, सज्जाद का मुझे अब्बास की कब्र पे नहीं लेके जाओगे? मौला फरमाते, पुप्पी अम्मा आप अब्बास की कब्र नहीं देख पाएंगी। अज़ादारो जैसे ही कहा कि सज्जाद मुझे लेके चलो, अज़ादारो इमाम आगे हैं, बीबियां पीछे है, एक छोटी सी कब्र थी, उस कब्र के पास आकर इमाम ने कहा, हादा कब्र अमीर अब्बास, ये कब्र चचा अब्बास की
आजादार हो, जैसे ये जुमले कहिए चचा की कब्र है, चचा की कब्र है। बीबी ने पूछा हाल हाजा कब्र अब्बास, क्या ये अब्बास की कब्र है सज्जाद? 3 मरतबा पूछा। जब 3 मरतबा पूछा, मौला कहते पुप्पी बार बार क्यों पूछ रही है? मौला तड़प के कहते हैं, तड़प के कहते हैं, तड़प के कहते हैं, पुप्पी अम्मा आप कब्र नहीं देख सकती, मैंने जनाजा दफनाया था, बिखर गया था उम्मुल बरीर। हाज़ादारो कब्र अब्बास से विदा किया, काफिला करबला से मदीना की तरफ रवाना हुआ। जब मदीना की तरफ रवाना हुआ, काफिला जितना मदीने के करीब जाता था, बीबियों की रोने की आवाजें बुलंद होती जाती थी, बीबियों के रोने की आवाजें बुलंद होती जाती थी। इमाम ने कहा बशीर 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 हम मदीने नहीं जाएंगे। क्या क्यों? क्या इसलिए जो बीबियां मदीने में मौजूद है किसी की रूह न बर्बाद हो जाए। क्या क्यों मौला, क्या फर्क है? इमाम कहते हैं बशीर जब रबाब गई थी गोद में 2 बच्चे। हाज़ादारो इमाम की गुर्बत की इंतहा, इमाम का खुद का फरमान है, बाकिर मेरी पहली गुर्बत थी जब मैंने बाबा के साथ मदीना छोड़ा था, दूसरी गुर्बत थी जब मैं शाम की तरफ चला था, तीसरी गुर्बत थी जब मैं वापस करबला आया था, चौथी गुर्बत थी जब मैं मदीने में आया था और मेरे साथ मेरा भाई अकबर नहीं था, मेरे साथ मेरा चचा अब्बास नहीं था। आजादारो मदीने में इमाम का वक्त कैसे गुजरा मैंने तफसीलात को छोड़ा। 35 बरस गुजर गए। कभी पानी को देख के रोते थे, कभी किसी बच्चे को गोद में देख के रोते थे, कभी किसी बीबी के सर पे चादर को देख के रोते थे। आजादारो एक जलील कदर आलिम फरमाते हैं का इंतहा तो ये थी जब इमाम कभी सजदे से उठते थे ना तो भी रोते थे। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हैं? फरमाया जब मैं उठता हूँ मुझे वो मंजर याद आता है, मेरा चचा बगैर बाजुओं के गिरा के थे। एक एक मंजर को याद करके रोते, एक एक मंजर को याद करके रोते थे। अदादारो इमाम को जहर मिली 20 मुहर्रम, 21 मुहर्रम या 23 मुहर्रम, तीनों रिवायतें मौजूद हैं। का जब जहर मिली शिद्दत जहर का असर हुआ। मैंने मजलिस को इख्तिताम की तरफ बढ़ाया। अदादारो जैसे शिद्दत जहर का असर हुआ, इमाम ने बाकिर को बुलाया, बाकिर सबको बुलाओ। इमाम बाकिर के साथ मौला के बच्चे भी आए, मौला के पोते भी आए, तमाम बीबियां भी आई। मौला कहते बाकिर इनके सामने करबला बयान करो, बाकिर इनको करबला का बताओ, बाकिर मैं करबला सुनना चाहता हूँ। मौला कहते बाबा क्या बयान करूं, आप तो बयान कर चुके। मौला कहते बाकिर आज मेरे सामने बताओ, मैंने तुम्हें बताया था मेरा बाबा कैसे ज़िबा हुआ था। मौला कहते थे बाबा आपने मुझे बताया था 13 ज़रबों से हुसैन का आजादार और शिद्दत जहर के बावजूद इमाम से हिला नहीं जा रहा था, बिस्तर पे थे, फिर भी इमाम के आंसू नहीं रुकते थे। कहते थे बाकिर मंजर बताओ। का बाबा कौन सा मंजर? का वो मंजर बताओ जब जनाजों को कब्रों से निकाला गया था। का बाबा आपने मुझे बताया था कि जब 11 मुहर्रम हुई सारे शहीदों के सर कातिलों को दिए गए थे, एक सर नहीं मिला था। का वो किसका था? का वो आपके भाई अली असगर का था। का बाकिर फिर क्या हुआ था? का के बाबा आपने बताया था नेज़े जमीन में लगे थे, आपने बताया था। अदादारो मौला शिद्दत जहर के बावजूद कहते बाकिर चुप हो जाओ। बाकिर खामोश हुए। मौला कहते सुनो, जो नेज़ा जमीन में लगा था मैंने वो भी देखा था, उस नेज़े पर जब असगर आया था मैंने वो भी आजादारो इमाम कहते हैं कभी करबला न भुलाना, करबला को याद रखना। इमाम के अहलो हयाल रोती जाती है। फिर इमाम कहते सुनो बाकिर इन्हें बताओ शाम कैसी थी। मौला तड़प के कहते हैं ए लोगों, शाम में मैं और बाबा एक ही रसन में थे। जब कभी बाबा चलते थे मेरी सांसें रुक। आजादारो इमाम बयान करते जाते हैं, तड़प कर मौला बाकिर बयान करते हैं। इतने में मौला सज्जाद कहते बाकिर ने बताओ मैंने और तुमने शाम में एक जनाजा उठाया था, उस जनाजे का बताओ। मौला कहते बाबा ने और मैंने सकीना का जनाजा
अज़ादा रोआहो बुका हुई, इमाम ने करबला सुनी। मौला कहते बाकिर, बाकिर तुमने सारे दर्द बताए लेकिन बाकिर तुमने एक दर्द नहीं बताया। फरमाया बाबा हुक्म करे मैं क्या बयान करूं। मौला बाकिर रोते जाते हैं, मौला के आंसू नहीं रुकते। इमाम कहते बाकिर बताओ वो शाम का सफर कैसे गुजरा। अज़ादारो ये जुमले थे। मौला बाकिर कहते मदीने वालों, ए मेरे रिश्तेदारों, ए औलाद अली, ए औलाद हसन, ए औलाद हुसैन, कभी भी कोई शरीफ माओ के साथ बाजार में नहीं जा सकता। जहां पर मैं और बाबा गए थे अम्मा की चादर सर पर नहीं। आजादारो इमाम अलैहिस्सलाम कहते बाकिर, बाकिर जी बाबा, बाकिर मुझे उठाओ। जी बाबा, बाकिर ने सहारा दिया, जनाब ज़ैद ने सहारा दिया। कहा बाबा कहाँ चले, मस्जिद चले, रोज़े रसूल पे चले। फरमाया नहीं बाकिर मुझे जमीन पे लिटाओ, बाकिर मुझे जमीन पे लिटाओ। खुदा की कसम ये वो जुमले हैं इस पे इंसान की रूह बर्बाद हो जाए तो भी हक अदा नहीं होता। फरमाया बाकिर मुझे जमीन पे लिटाओ। बाकिर कहते हैं बाबा आपकी बेटियां देख रही हैं, आपकी बहनें देख रही हैं। फरमाया बाकिर ज़ैनब देख रही थी, सकीना देख रही थी, बाबा का जनाजा करबला की। बाकिर, बाकिर मुझे जमीन पे लिटाओ। बाकिर ने जमीन पे लिटाया, बाकिर ने जमीन पे लिटाया। कहा बाकिर मेरे करीब आओ। बाकिर करीब आए। कहा बाकिर मेरे कान में मेरे बाबा की प्यास के मसाए पढ़ो। बाकिर कहते बाबा आपने मुझे बताया था जब शिमिर का खंजर चल रहा था, बाबा तड़प तड़प के कहते थे या ज़हरा या इमाम ने मसाइब सुने, इमाम ने मसाइब सुने। अब जी संभालिएगा, अपना दिल संभालिएगा। अब इमाम कहते हैं बाकिर तुमने सारे मसाइब सुनाए, तुमने सब कुछ बयान किया। बाकिर जाते जाते मुझे मेरे भाई अली अकबर का मसाइब सुनाओ। बाकिर मुझे अली अकबर के बारे में बताओ। कहा बाबा मैंने आपसे सुना था जब अली अकबर जमीन पर गिरे थे हुसैन की बीनाई खात्मा। अली अकबर की मसाइब को सुना, अली अकबर के मसाइब को सुना। अली अकबर के मसाइब को सुनकर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा बाकिर, बाकिर जो मैं 100 गुलाम हर साल खरीदता हूँ बाकिर वो खरीदते रहना। का मौला उनका क्या करना है। फरमाया उन्हें पूरा साल करबला सुनाना, फिर उन्हें हज पे भेजना। का मौला वो हज पे क्या काम करेंगे। का उन्हें कहना हाजियों को जमजम पिलाए और बताए तुम पानी पियो शबीर प्यासा। इमाम की रूह परवाज हुई, मजलिस मुकम्मल हुई, इमाम की रूह परवाज हुई। रूह का परवाज होना था। मौला बाकिर ने पर्दा लगाया, पर्दा लगाया। क्यों लगाया पर्दा। इमाम को गुस्ल इमाम दे सकता है, इमाम को इमाम के अलावा कोई बंदा गुस्ल नहीं दे सकता। इमाम ने पर्दा लगाया। एक तरफ मौला बाकिर है, पर्दे के बाहर ज़ैद शहीद है, पर्दे के बाहर इमाम की और औलादे हैं, हसन के बच्चे हैं। अदादार हो मौला को पानी देते जाते थे। इमाम तड़प के कहते थे हाँ मुझे बाबा ने बताया था दादा अली भी बतूल को गुस्ल देते रोए थे क्योंकि जख्मी पहलू देखा था। मुझे बाबा ने बताया था जब सकीना का गुस्ल हुआ था ज़ैनब रोई थी। फरमाया क्या हुआ। मौला कहते क्या हुआ। फरमाते मैं उजड़ गया। क्या क्या का असरुल हदीद अला उनके अभी मैंने जब कमीज हटाई बाबा की गर्दन पर तो का निशान 35 बरस तक जब मैंने बाबा के कुर्ते को हटाया बाबा की पुष्ट पर ताजियानों के निशान। आए मेरा गरीब बाबा। आजादारो इमाम को कफन मिला, इमाम का ताबूत चला। जब ताबूत चला लोग कहते थे सज्जाद चला गया, अजादार चला गया। इमाम कहते थे लोगों बाबा तो तभी मर गया था जब ज़ैनब की चादर छिनी थी। ये तो सज्जाद का जनाजा था। कभी कूफा कभी मातम सज्जाद, मातम सज्जाद, मातम सज्जाद।
ہائے سجاد 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 بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا 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 سب پڑھیں جی بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا پھر بولو جی ہاں جی ہوتا تھا سفر میں قافلہ سالار خون روتا تھا بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا سفر میں قافلہ سالار خون روتا تھا بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا سب بولو جی پھر بولو جی ہوتا تھا سوال چادر زینب جو لب پہ لایا تھا تو شام والوں نے پتھر غریب کو مارے مہار تھا مکلا چار خون روتا تھا بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا سفر میں تھا سفر میں قافلہ سالار خون روتا تھا بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا بولو ذرا سی ہوتا تھا ذرا سی دیر کو عابد ہوا تھا فرش نشین تو تازیان سے مارا لیکن یوں آ کر پھٹے لباس کرتا خون روتا تھا بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا پھر بولو جی ہاں جی ثانی یہ شامل تھا یہ شام والیاں کہتی تھی آ گئے باغی چکا لو آج بدرو حنین کے بدلے امام سن کے یہ گفتار خون روتا تھا بہن کے
بیڑیاں بیمار خون روتا تھا. سکینہ پھر بولیں جی. کہا سکینہ نے سجا دے کربلا لے چل, وہاں پہ دھوپ میں لاشا ہے اپنے بابا کا. بہن کا دیکھ کے اسرار خون روتا تھا. بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا. بہن کے بیڑیاں ہوتا تھا. سفر میں قافلہ سالار خون روتا تھا. بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا. بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا. وہ جن لبوں پہ محمد نے تھے دیے بوسے, جب ان پہ ماری تھی چھڑیاں یزید فاسق نے. غریب بر سر دربار خون روتا تھا. بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا. بہن کے بیمار روتا تھا. کوئی جو پوچھتا غم کس جگہ ملے زیادہ, تو 3 بار دکھی شام 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 کہے. پھر اس کے بعد وہ 100 بار خون روتا تھا. بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا. بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا. سوال چادر زینب جو لب پہ لایا تھا, تو شام والوں نے پتھر غریب کو مارے. مہار تھام کے لاچار خون روتا تھا. بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا. بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا. سفر میں قافلہ سالات خون روتا تھا. بہن کے بیڑیاں بیمار خون روتا تھا.